بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر تمام چلنے والے تمام تعلیمی ادارے BET پرائمری اسکول، صوفیہ ہائی اسکول، PU کالج اور سعادت النساء ڈگری کالج برائے خواتین کی طرف سے یہاں پر افطار کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں سارے تعلیمی اداروں کے ہمارے جو ہے اسٹاف کے اہل و عیال بھی آئیں گے، اور اسی طرح جو ہے آس پاس کے جو ہے تمام تعلیمی اداروں، ہائی اسکول، PU کالجز اور دوسرے تعلیمی اداروں کے بھی اساتذہ کو مدعو کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ بھاری تعداد میں شرکت کرنے کی امید کی جا رہی ہے۔ Iftar party is an annual reception hosted by our institution every year. This is a place where we thank both our staff members, their families and well-wishers of our institution, acknowledging them both publicly and privately for their efforts so that they feel constantly encouraged. کی طرح مثال بھی BET انسٹیٹیوشنز میں افطار کی دعوت رکھی گئی ہے جو انتظامیہ کی طرف سے منعقد کی جاتی ہے، اور اس محفل میں ہمارے ڈپارٹمنٹ PU بورڈ، بنگلور یونیورسٹی اور اسٹیٹ بورڈ کے تمام ممبران کو، تمام عہدیداران کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ آئے ہمارے ساتھ مل کر افطار کریں، اور ہم سب یہاں پر ایک اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سال بھی بنگلور یونیورسٹی سے، PU بورڈ سے، BEO آفس سے آفیسران کو بلایا، مدعو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ توقع ہے کہ تمام آفیسران آئیں گے، ہمارے ساتھ افطار میں شرکت کریں گے، اور افطار کے بعد صلاۃ المغرب ہوگی، اس میں دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اتحاد و اتفاق، امن و چین و سلامتی ہمارے ملک میں قائم کرے، اور ہمارے بچوں کو علم کی دولت سے سرفراز کرے۔ السلام علیکم۔ ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ BET بسم اللہ نگر ایجوکیشنل ٹرسٹ، BET سعادت النساء ڈگری کالج تعلیم و ترقی کے معاملے میں بنگلور شہر کا ایک معروف ادارہ شہر بنگلور بسم اللہ نگر میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت، آداب زندگی سکھانے، اس تگدو میں مصروف نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک کی فلاح و بہبودی کو اولین درجہ دیتے ہوئے BET سعادت النساء ڈگری کالج تمام ذات و پات سے بالاتر ہو کر سال 2023 رمضان المبارک کی برکتوں، اس کی مبارک سعادت کو حاصل کرنے BET ٹرسٹیان، ادارے کے ذمہ داروں، چیئرمین، سیکریٹری دعوت افطار کا اہتمام کیا۔ اس کے سجانے منانے، اپنا ایک خاص تجربہ پیش کرنے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ریاکاری سے محفوظ سیکریٹری جناب محمد سیف اللہ BET کالج نے اس کار خیر کا اہتمام کیا۔ اساتذہ BET کالج آئے ہوئے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر BET سعادت النساء ڈگری کالج انتظامیہ، سیکریٹری محمد سیف اللہ اور اساتذہ نے ہندو مسلم اتحاد، پیار محبت بھائی چارگی کو عام کیا۔ اس مبارک دعوت افطار کے موقع پر BET پروگرام ہال میں دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ ملک میں امن و شانتی، بھائی چارگی کے تعلق سے دعا مانگی گئی، روزہ افطار کیا گیا۔ اس زرین موقع پر ظہر، عصر اور مغرب کی باجماعت نماز ادا کی گئی۔ مفتی افتخار احمد قاسمی، صدر جمعیت علماء کرناٹک بسم اللہ نگر نے مغرب کی نماز پڑھائی اور دعا فرمایا۔ بعد ازاں تمام مہمانوں کو افطار دعوت کا بہترین نظم کیا گیا۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، پروردگار ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم سب کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں،
परवरदिगार हमारे हाथों में कुछ नहीं है। ऐ अल्लाह वही होता है जो आप चाहते हैं। ऐ अल्लाह हम सब तेरे रहम करम के मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा, करम फरमा। ऐ अल्लाह आफियत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह खैर वक़ूती के फैसले फरमा। परवरदिगार रमज़ान मुबारक की घड़ियों में आपसे मांगने से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐ अल्लाह ये तमाम रोज़ेदार बंदे तेरे दरबार में बैठे हैं। ऐ अल्लाह तेरे हुक्म के ताबे होकर बैठे हैं। ऐ अल्लाह हमारी जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा। हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके लिए कर्ज़ की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। जिनके घरों में परेशानियाँ हैं उन परेशान हैं उनके कारोबार में बरकतों के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियाँ हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। परवरदिगार हर छोटी बड़ी परेशानियों से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे की हिफाजत फरमा। इस इदारे के बानियों की हिफाजत फरमा। इस इदारे के मुआविनीन की हिफाजत फरमा। इस इदारे की तरफ तवज्जो करने वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अब जो मौजूदा ज़िम्मेदार हैं उन ज़िम्मेदारों की हिफाजत फरमा, उनके खिदमात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत की बच्चियों के लिए बहुत बड़ा काम यहाँ हो रहा है। ऐ अल्लाह बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत का भी इंतज़ाम यहाँ है। ऐ अल्लाह इस इदारे की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह शैतानियत से हिफाजत फरमा, हासिदों फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नत में आला इल्लीयीन में मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों की हिफाजत फरमा। जो हमारे नौजवान हैं उनकी जवानी की हिफाजत फरमा। जितनी बड़ी उम्र के अफराद यहाँ जमा हैं ऐ अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके लिए तंदुरुस्ती के फैसले फरमा। परवरदिगार ऐन इफ्तार का मौका है, अभी हम तेरे ही हुक्म से रोज़ा खोलने वाले हैं। परवरदिगार तेरा वादा है कि इस वक्त जो दुआएं मांगी जाती हैं उन दुआएं को आप ज़रूर कबूल करते हैं। बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज अपने प्रोग्राम पेश करने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। साथ में तालीम और तरबियत का मुकम्मल खाका पेश करने और लड़कियों के लिए तालीम निज़ाम को एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकारी से चलाने में शहर बेंगलुरु के लिए एक मिसाल रिकॉर्ड बना रहा है। यहाँ इस कॉलेज में देखा गया कि लड़कियाँ बाहिजाब तालीम हासिल करती हैं। निज़ाम तालीम और तरबियत में अपने उसूल मजहबी रवादारी का पास रखा जाता है। यहाँ तालीम, मुल्क मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का सबक पढ़ाया जाता है ताकि नस्लों में भेदभाव ना रहे, क्योंकि यही मजहब सिखाता है जिसकी तालीम का बेड़ा बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज ने उठा रखा है। सदाए हिंद उर्दू महूम इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। ಇವತ್ತು BET ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಇದು ಮಾನವೀಯ ಗುಣದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बीईटी कॉलेज में 7 साल से काम कर रही हूँ और आज यहाँ बीईटी में इफ्तियारी गेट टुगेदर है। हर साल रमज़ान के महीने में गेट टुगेदर करना इफ्तियारी का यहाँ का ट्रेडिशन बन चुका है। हर साल हम ये मनाते हैं। रमज़ान खाली एक कौम की त्योहार नहीं, बल्कि हम सब मिलके, हमारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस, पूरे ऑफिशियल्स आते हैं। हर रिलीजन के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं। Small token of love, sir. You gave us time. This is the month of fasting. All the mistakes you have committed, God forgives you. Thank you so much. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೂಪ अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तियारी यहाँ हमारी बीईटी में हम मेहमान बन के आए थे। यहाँ पे कभी भी यहाँ बीईटी आए तो हमारे मरहूम दादा साहब याद आ जाते हैं। बीईटी सुखा हाई स्कूल सुखा मेरी दादी थे और बीईटी सादतुन निसा कॉलेज हमारे चेयरमैन मोहम्मद साहब की दादी के नाम से बनी थी। यहाँ पे हम जब आते हमारे बुजुर्गों याद आ जाते हैं। यहाँ बीईटी इस इदारे में बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत तरक्की हो रही है, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरी डे बेसिस। दे हैव गॉन फ्रॉम स्मॉल टू बिग एंड बिग टू इन्फिनिट। कुछ कमी नहीं है अभी यहाँ पे माशाल्लाह। देखते हुए हर एक उनके शोबे में हर एक उनके steps, every step that they are taking, every step that they are going forward, so much of progress and so much of development here in BET, mashallah. Their entire team is very united, mashallah. इतनी दुआ हम देते अंदर से बाहर से, इनकी पूरी टीम को बहुत अच्छी। हमारे शहर में ऐसी टीम शायद कहीं कोई इदारे में है, मिलजुल के ऐसे काम की तरह मिल के काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बीईटी एसोसिएशन आज एक बड़े ही अनोखे अंदाज से इफ्तार की जो है दावत पेश की। बहुत से तालीमी मिली इदारों को उन्होंने दावत दी और यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एक बड़े अच्छे अंदाज से जो है इस तकरीब को उन्होंने सजाया था और दुआएं की गई। फिर इफ्तार के रोज़ा खोल के बाद जो है खाने का इंतज़ाम किया गया था और बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है उन्होंने इसको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इसकी की। बहुत से इफ्तार तो होते ही, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है उन्होंने तमाम लोगों को मिलाया। न सिर्फ इफ्तार की, बहुत आपस में लोग मिले, आपस में एक तरह का गेट टुगेदर था। तालीमी और मिली इदारे जो काम कर रहे हैं वो आपस में मिले, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जहाँ तक बीईटी तक तालीमी इदारों का ताल्लुक है, एक बहुत ही मेयारी तालीम हमारी लड़कियों को दे रहे हैं मुसलमानों। हमारे ही इलाके में आकर यहाँ पर ये तालीमी इदारा कायम किए हैं, बहुत बड़ी बात है।
हमारे बच्चों को दूर जाना पड़ता था, लेकिन उसी इलाके में लाकर कॉलेज को जो है उन्होंने शुरू किया, मेहनतें की, यहाँ पर जो है 40 साल तकरीबन लगेंगी, लेकिन उसका जो है फल अब नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छे अंदाज से आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, कितने अच्छे लैबोरेटरीज हैं, कितनी अच्छी लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, इनके फंक्शन हॉल्स कितने उम्दा हैं, और यहाँ पर बहुत ही लड़कियाँ भी जो है दिलचस्पी से पढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों को मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि इतना बड़ा काम उन्होंने यहाँ पर किया है, एक लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से किया है। ये होना चाहिए, हो रहा है, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हम आपको मुबारकबाद हैं और हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग उनके साथ देंगे, साथ रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बेनज़ीर बेग है, डॉक्टर बेनज़ीर बेग। आज जिस तरह बीएटी कॉलेज के अंदर जो है इफ्तार की दावत का अहतमाम किया गया था, माशाल्लाह दावत तो बेहतरीन रही। इसके साथ साथ इसी सिलसिले से जो है कॉलेज का निज़ाम भी, तालीमी निज़ाम भी बड़ा अच्छा रहा है। तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने देखा, और आप BA के दायरे से मुंसलिक हैं, तो बीएटी कॉलेज का जो नज़्म है आपको कैसे लगा? बीटी कॉलेज मैं समझती हूँ, मतलब हमारे मामू MD साहब बेस के ट्रस्टी हैं, और हम लोगों ने भी इस एरिया के साथ साथ ये स्कूल को, बीटी को छोटे से बड़ा होते हुए, यानी झोपड़ी से इस महल तक देखा हुआ है। और बीटी की खासियत जो थी वो ये एक सबसे ज़्यादा थी कि गर्ल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हमें काम करना है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके पीछे इतने साल काम किया, इसको एक छोटे से लेवल से लेकर यहाँ तक लाए, जहाँ से स्कूल, PU, और अब तो ये माशाल्लाह हमारे पास डिग्री कोर्सेज हैं वगैरह सब। और ये कम्युनिटी जो हमारी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो यहाँ पे हमारी लड़कियों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था, कहाँ भेजेंगे आगे पढ़ने के लिए, तो ये जो बहुत बड़ा मसला था वो BT की वजह से हल हो गया। और BT एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मतलब हर बच्ची अपने आप को सेफ समझती है, और फ्रीडम के साथ बच्चियां जो है तालीम हासिल कर सकती हैं। और बेहतरीन यहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज पर्सनस हैं, अब इस वक्त जो सैफ सर हैं, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब बेलौस अपनी कौम के लिए काम किया है। उनके लिए बस यही होता है किसी भी तरीके से बच्चों के लिए कुछ भला हो जाए। अब ऐसे लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है।